So guys, welcome back to my class. So today we are going to do question number 6. We are doing chapter 6 lines and angles, and we will do exercise 6.2 question number 6. Till question number 5 we have already done, and please watch the videos in the playlist which is available in the playlist. Okay, so let's start. तो क्या करते हैं इसमें ना, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, ये अगर कोई मिरर होता है, एक मिरर है, सपोज एक तो परपेंडिकुलर लेना ही है। सपोज ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, सपोज ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना। मिरर में अगर रेज गिरेगा, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, क्या होगा? सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, मतलब ये आई विल बी इक्वल्स टू आर। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी यूजिंग हियर। एंड आल्सो सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट, if two lines are parallel and if we have a transversal, then alternate interior angles are equal. So ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। और हमें करना क्या है, वो क्या दिया गया हुआ है, see, ये दिया हुआ है, दिस इज माई ए बी इज इंसिडेंट रे, ठीक है, ये फिर रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, दो मिरर, एक्चुअली ये मिरर वन, दिस इज मिरर टू, दो मिरर है। तो क्या होगा, ये इंसिडेंट रे, मतलब इस पर रे को स्ट्राइक किया है, इस रे ने स्ट्राइक किया इस मिरर को, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया। ठीक है, दिस इज माई इंसिडेंट रे, ठीक है, इसमें स्ट्राइक किया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया, दूसरा मिरर इसमें आके फिर ये इंसिडेंट रे बन गया, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ। दैट मीन्स क्या हो गया, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे फॉर दिस मिरर, अगेन दिस बिकम इंसिडेंट रे फॉर दिस मिरर, दिस बिकम रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इक्वल टू एंगल ऑफ रेस्ट, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट क्या है ना, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम टू दिस, ओके, this mirror. So this is angle of incidence I will be equals to angle of reflections R. So these are the basic concept. Okay, this perpendicular line will be perpendicular to this mirror. Okay, so this is the basic concept which we'll be using to prove this math sum. Okay, and what is the final thing? See, these are the two mirror which are parallel to each other. Okay, these are the two mirror which are parallel to each other. The PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. So this PQ, this is RS. These are the two mirrors which are parallel to each other. And incident ray AB. See, this is my AB. See, this is my AB, strikes this mirror PQ, okay, at B, at this point B, and then again reflected and moves towards this mirror RS and strike at this point C, and then gets reflected back towards D. Okay, CD is reflected in this case. Okay, and again reflects back. Okay, what do we have to prove? Prove that AB parallel CD. That means ये जो AB दिख रहा है ना, AB, ये जो AB है, ये AB और फिर ये CD, have to prove this two are parallel. ऑलराइट गाइस, सो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, ये जो लाइन देखो, ये लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस मिरर, और फिर ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस मिरर। और व्हाई आई एम डूइंग दिस वन, जस्ट टू गेट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस and then angle of reflection in this case, and in this case this will be the angle of incidence I, and this is the angle of reflection R. Okay, and these two are equal, and this angle and this angle are equal. So let's start. डिलीट करते हैं सबसे, तो अभी क्या करते हैं, सोल्यूशन है, ठीक है, ड्रॉ ray BL perpendicular to PQ. So draw ray BL. Let's name it BL, perpendicular to PQ. Perpendicular. BL perpendicular to PQ. This is B. BL perpendicular BL. So this point, let's take it L. BL perpendicular to this one. And
सी M, let's take this CM, C, this one, CM, this line, okay, this is M, perpendicular to this mirror, CM perpendicular to RS. Okay, now since, see, these are the two perpendicular lines, this lines, okay, BL and CM, these are the two perpendicular lines. These two perpendicular lines will be parallel to each other, because see, these are the parallel lines, this is the parallel lines, and these are the parallel lines, and these two lines are standing on these two parallel lines. So फाइनली व्हाट हैपन, दिस टू परपेंडिकुलर लाइंस जो है, ये परपेंडिकुलर लाइंस जो है, दैट मींस बीएल और ये सीएम, इसको अच्छे से, ये हो गया बीएल है, ठीक है, ये वाला बीएल है, बीएल बिकम पैरेलल टू सीएम। समझ में आया? कैसे लिखते हैं, सिंस पी क्यू, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये दोनों, ये मिरर, ये दोनों मिरर पैरेलल है, सो इसमें ये वाला है, देयरफॉर वी कैन राइट एंड बी एल बीएल और ये सीएम, सीएम आर perpendicular lines, ठीक है, therefore what I can write this two perpendicular line become parallel to each other, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गया, ठीक है, ये वाला BL और ये CM पैरेलल हो गया। अभी क्या करते हैं इसको, नाउ नीचे ले लेते हैं, नाउ BL, तो ये क्या, BL और ये CM पैरेलल हो गया, और एक ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं ना, ये BC ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल। Now BL parallel to CM and BC is a transversal, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो क्या होता है, अगर दो लाइन पैरेलल होता है, अगर एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, LBC, ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ये एंगल का नाम LBC, और ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, BCM, LBC, therefore angle LBC will be equals to angle BCM। क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये क्या एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया नंबर 1। अभी क्या करते हैं, ये लो देखो, सिंस सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है अभी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये, और यहाँ पे ये, सिंस ऐसा लिखते हैं, सिंस angle of incidence, since angle of incidence is equals to angle of reflection, since angle of incidence equals to angle of reflection, therefore what we can write, therefore क्या लिख सकते हैं, so since angle of incidence equals to angle of reflection, therefore we can write, see this I equals to R, है ना, means ABL equals to LBC,
एंगल एल बी सी, समझ में आया कौन सा है? ये वाला ए बी एल और ये वाला दोनों इक्वल है। अभी ए बी एल एल बी सी, सो ए बी एल और एक है एंड इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी सी एम, एंगल बी सी एम विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी एम, ये वाला एम सी डी है ना, आई इक्वल्स टू आर, यहाँ पे एम सी डी, एम सी डी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको ए बी एल को इक्वल्स टू एल एल बी सी को रिप्लेस करते हैं। एल बी सी क्या था? व्हाट वाज एल बी सी? LBC was this one, BCM from equation 1. This is BCM, ये वाला है। LBC की जगह BCM लिखा है since ये भी from equation 1, from equation 1 में ये था ना, ये और इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये BC ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये इक्वल है, तो इसको रिप्लेस किया, LBC को रिप्लेस किया, ABL इक्वल्स टू BCM लिखा, ठीक है। दिस इज equation number 2 I can put, and this is equation number 3, okay, और this I can put 2, this is equation number 3, 1 तो पहला वाला था। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमको क्या मिल रहा है? देखो 2 और 3, देखो इसको देखो और इसको देखो, ये वाला को देखो, BCM BCM कैंसिल हो गया, दिस BCM एंड दिस BCM कैंसिल, क्या रह गया? तो ABL विल बी इक्वल्स टू MCD, ABL विल बी इक्वल्स टू एंगल MCD, ABL इक्वल्स टू MC, इसको कुछ क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, को डाल देते 4, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में क्या था? इक्वेशन 1 वाज दिस वन, एल बी सी, एंगल एल बी सी, इसको फिर से लिखते हैं इक्वेशन 1 है, इक्वल्स टू एल बी सी इक्वल्स टू बी सी एम, बी सी एम, ठीक है। ये क्या था? इक्वेशन 1 था, फ्रॉम अबव, ठीक है, ये पहला हमने लिखा था फ्रॉम अबव, हो गया। अभी क्या करते हैं, ए बी एल एल बी सी, इसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड करने से क्या हो जाएगा, चेक हियर, ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करते हैं, एडिंग करने से ए बी एल प्लस एल बी सी, ए बी एल प्लस एल, ऐड कर लो फिर समझ में आ जाएगा, एल बी सी, ये दोनों ऐड किया, इक्वल्स टू इधर एंगल एम सी डी प्लस एंगल बी सी एम, ऐड करने से कितना आएगा? ए बी एल एल बी सी, ए बी एल एल बी सी, तो ये पूरा आ गया ना, ए बी एल एल बी सी, मतलब ये वाला आ गया, ये वाला, इसका क्या नाम है? ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू इस तरफ, ये दोनों को अगर ऐड करता है तो, ये दोनों को ऐड करता है तो क्या आएगा? एम सी डी, एम सी डी मतलब ये वाला, एम सी डी बी सी एम, बी सी एम मतलब ये वाला, ये दोनों ऐड, ये और ये ऐड हो गया तो क्या आएगा? बी सी डी, एंगल बी सी डी, समझ में आया क्या? ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों, ये पूरा आ जाएगा, मतलब बी सी डी आ जाएगा, ए बी सी और बी सी डी इक्वल है, तो ए बी सी और बी सी डी अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? दिस एंगल को पूरा रफ करते हैं, तो अगर पूरा रफ करते इस तरह, ठीक है, तो चेक करो अभी, सी ए बी सी ये एंगल और बी सी डी एंगल अगर इक्वल है तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल के रिवर्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल और ये दो लाइन पैरेलल हो गया
ना, अगर ये दो लाइन पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है देन दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल, दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट मीन्स दिस two what are this, these are, that is a pair of alternate interior angles are therefore AB parallel to CD। प्रूफ्ड, यही तो हमको प्रूव करना था, समझ में आना, ये AB और ये CD पैरेलल हो गया, ठीक है। दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। So this is the question number 6. This is the end of exercise 6.2. So in next video we'll do exercise 6.3. Okay. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।